We are discussing the chapter Combustion and Flame, 6th chapter of class 8. In first session, we have already discussed up to the measures to be taken to control the fire. And in this session, we'll discuss about the types of combustion, flame, fuel, ideal fuel, fuel efficiency, then harmful effects of burning fuel. So, let us discuss what are the different types of combustion. Combustions are of three types: rapid combustion, spontaneous combustion, and explosion. What is rapid combustion? In this type of combustion, the substances burn rapidly and yield light and heat. For example, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Okay, so that means आप यहाँ देख सकते हो ये जलता हुआ मैच स्टिक को हम जब गैस के पास ले गए तो वो अचानक से जलने लगा by producing huge amount of heat and light. इस तरह का कंबस्शन को कहा जाता है रैपिड कंबस्शन. मीन्स जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो बहुत रैपिडली फायर को कैच कर लेता है. ओके, सो सच टाइप ऑफ कंबस्शन इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन. The second type of combustion is spontaneous combustion. In this type of combustion, substances burst out into flames suddenly without any known reason. For example, in my last session, I was discussing about the forest fire. Okay, so here you can see the picture. Here it is the picture of a forest fire. In forest, nobody is going to burn the forest. What happens? In dry summer, in very hot summer, the grasses, small grasses or the big grasses, when they are dried, when they get the ignition temperature, hot sun is there, then they catch fire because they get their ignition temperature. And after the grasses being catch the fire, then that fire gradually spreads throughout the forest. Okay, पहले क्या होता है, छोटे छोटे ग्रास या फिर बड़े ग्रास जो होते हैं उसमें आग लग जाता है. धीरे धीरे सूखे डाल पत्तियां जो होते हैं उसमें आग लग जाते हैं. फिर बड़े बड़े ट्रीज में भी आग लग जाता है. धीरे धीरे ये आग तेजी से पूरे जंगल में फैल जाता है. ठीक है, सो इसका कोई रीजन नहीं होता. इसका कोई भी रीजन नहीं होता. अननोन रीजन की वजह से ये अचानक से आग लग जाता है. ओके, तो यहाँ रीजन हम बोल सकते हैं कि सन का रे, जो हॉट सन रे, उसी के वजह से हुआ है. ओके, या फिर लाइटनिंग की वजह से हो गया है. तो ये अपने आप जलने लगता है. उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया तो ये जलने लगता है. सो सच टाइप ऑफ कंबस्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. The third type of combustion is explosion. In this type of combustion, all of a sudden reaction results into heat, light and sound. ये इस तरह का combustion है जहां पर आपका हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है. इससे पहले जो हम दो तरह के कंबस्शन पढ़े उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है बट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. बट एक्सप्लोजन में आपका तीनों चीज प्रोड्यूस होता है. ओके, सो इसमें क्या होता है आपका एक्सप्लोजन में, जनरली आपने देखा होगा क्रैकर्स जो होता है, फायर क्रैकर्स होता है. दिवाली में हम क्रैकर पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सडन रिएक्शन होता है
उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से हीट, लाइट एंड साउंड तो प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ पॉइजनस गैस भी रिलीज होता है। उसके साथ साथ गैस, काफी सारे गैस रिलीज होता है, जिसको इनहेल करने से हमारा तबीयत भी खराब हो सकता है। उसके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी ये पोल्यूट करता है, एयर पोल्यूशन करता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन, द थर्ड टाइप ऑफ कंबशन. Now we'll discuss the flame, what is flame and the structure of a flame. When something is burnt, a hot luminous gas emerges out of the substance. This gas is called as flame. Okay? ये flame क्या है, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी. Flames are result of the substances which vaporize on burning. Example includes kerosene, oil, wax, etc. तो फ्लेम एक तरह का गैस होता है जो कि किसी चीज को जलाने से रिलीज होता है. ठीक है, जिस चीज को जलाने से गैस रिलीज नहीं होता उस चीज में आपका सिर्फ ग्लो होता है, फ्लेम नहीं होता. ठीक है, जैसे हम केरोसिन को जलाएंगे, ऑयल को जलाएंगे, वैक्स को जलाएंगे तो उसमें फ्लेम निकलेगा. आप देख सकते हो यहाँ वैक्स है, ये wax is the fuel here and this is the wick, that is a thread is there. So ये जैसे जैसे जलता है तो wax से एक गैस रिलीज होता है. ओके, तो आपको डायग्राम के साथ मैं समझाती हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और फ्लेम का कौन सा हिस्सा ज्यादा हॉट होता है, कौन सा हिस्सा कम हॉट होता है. तो फ्लेम का 3 हिस्से होते हैं. एक है आपका आउटर जोन. आउटर जोन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. आप ध्यान से देखोगे तो ये आउटर जोन जो है ये ब्लू कलर का है. आप देखो सबसे बाहर जो है ब्लू कलर का एक पतला सा लेयर है. ठीक है, एंड दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट. दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट. Am I clear? ये है हॉटेस्ट पार्ट जो कि ब्लू कलर दिख रहा है आपको. दिस इज द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर मिडिल जोन. आप देखो मिडिल जोन में क्या होता है आपका, दिस येलो पार्ट इज द मिडिल जोन. ओके, ये हो गया आपका आउटर जोन. Then middle zone. Middle zone is moderately hot. It is moderately hot because here partial combustion takes place. Okay. Then आपका innermost zone, सबसे भीतर जो जोन होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, that is least hot. Why it is least hot? Because the innermost zone of unburnt substance is here. यहाँ हमने wax लिया तो wax का ये unburnt पार्ट है, इसीलिए ये सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. आपने देखा होगा कि गैस चूल्हा जो आप जलाते हैं उसमें अच्छी तरह आप देख सकते हैं कि जब वो खत्म होने को आता है या फिर उसमें कुछ डस्ट जम जाता है आपके चूल्हे में, ओवन में, तभी आपका येलो कलर फ्लेम निकलता है. अदरवाइज उसमें से ग्रीन कलर का ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, ब्लू या ग्रीन कलर का निकलता है, वो होता है सबसे हॉटेस्ट. और जब येलो कलर निकलने लगता है वो मॉडरेटली हॉट हो जाता है. सो हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन ए फ्लेम? आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन. आउटर जोन इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है. मिडिल जोन इज पार्शियली कंबशन जोन जो कि मॉडरेटली हॉट होता है. और इनर मोस्ट जोन जो कि अनबर्न्ट सब्सटेंस या फिर फ्यूल अनबर्न्ट होता है जो कि लीस्ट हॉट होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. नाउ फ्यूल, we already discussed about what are fuels.
So the substance that undergoes combustion is called fuel. And examples of fuel also I have already given you in my first session. They are wood, charcoal, petrol, kerosene, natural gases, LPG, CNG. Now, what are the characteristics of a good fuel? It should easily be available. हम किसको fuel की तरह use करेंगे? जो easily available होगा. It should be cheap. सस्ता भी होना चाहिए. It should generate large amount of heat. आप जैसे देखो, आप वुड लोगे और उसके साथ एलपीजी लोगे, दोनों में से कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? डेफिनेटली आपका एलपीजी गैस. सो एलपीजी गैस इज ए बेटर फ्यूल देन वुड. इट शुड नॉट लीव एनी अनबर्न्ड और अनवांटेड मैटर आफ्टर कंबशन. जलने के बाद उसमें अगर अनबर्न्ड कुछ रह जाता है तो वो पॉल्यूशन करता है. जैसे आपको मैं बता दूं कि हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं फ्यूल की तरह इन आवर व्हीकल, तब क्या होता है? उससे धुआं निकलता है. धुआं के साथ साथ आपका कार्बन पार्टिकल निकलते हैं बिकॉज दे आर अनबर्न्ड पार्टिकल्स, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है. ओके, बट अगर हम एलपीजी या सीएनजी यूज करेंगे तो उसमें हम लोगों का जो उसको बर्न होने के बाद अनबर्न्ड पार्टिकल बहुत कम रिलीज होता है, वो पूरी तरह जल जाता है. दैट्स व्हाई ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, मोर हीट इज रिलीज्ड. ओके, देन व्हाट इज ए आइडियल फ्यूल? द फ्यूल व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल इज टर्म्ड एज एन आइडियल फ्यूल. मैंने जितना आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया इससे पहले वाला स्लाइड में, वो सारे अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको कहा जाता है आइडियल फ्यूल. लेकिन सही में कहा जाए तो देयर इज नो सच आइडियल फ्यूल प्रेजेंट. अगर क्यों? इसका उत्तर में हम बोलेंगे कि एक फ्यूल आइडियल होने के लिए सस्ता भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए. लेकिन जो सस्ता होगा वो एफिशिएंट कभी नहीं होता, और जो एफिशिएंट होता है वो कभी सस्ता नहीं होता. ठीक है, इसीलिए कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं है. Now, what is fuel efficiency? The quantity of heat generated on combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. You have to remember this definition. 1 kg fuel को बर्न करने से जितना हीट जनरेट होता है उसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू. Its unit is kilojoule per kg, that is kJ per kg. Calorific value of different fuels are given here. You can see in the table. Cow dung cake, इसको जलाने से हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है 6000 to 8000 किलोजूल पर केजी. Wood is this much. Coal 25,000 to 33,000. Petrol 45,000. Kerosene 45,000. Diesel 45,000. Methane 50,000. CNG 50,000, LPG 55,000, biogas 35,000 to 40,000, hydrogen, see how much it is, 1.5 lakh. So it is, you can say, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? हाइड्रोजन. सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका कितना कैलोरीफिक वैल्यू. तो सबसे कम होता है काउ डंग में, क्योंकि ये पूरी तरह जलता नहीं है, इसमें से हीट कम रिलीज होता है. वुड में उससे थोड़ा ज्यादा, कोल में उससे थोड़ा ज्यादा. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. Now we'll discuss about harmful effects of burning the fuels. Burning the fuel increases if we'll increase the consumption of fuel, then it has several harmful effects on the environment, like various air pollutants, unburned particles released due to partial burning of carbon fuels and causes many respiratory diseases.
ठीक है, जैसे वुड को बर्न करेंगे, काउ डंग का केक को बर्न करेंगे, तो उसमें तो अनबर्न पार्टिकल रहेगा, स्मोक रिलीज होगा, उसको अगर हम इनहेल करेंगे तो उससे हमको बहुत तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं। दूसरा, द पार्शियल बर्निंग ऑफ सम फ्यूल रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करते हैं जो कि एक पॉइजनस गैस है, और इस गैस को अगर हम इनहेल करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लंग्स में जम जाता है और लंग्स का एफिशिएंसी को कम कर देता है। इवन इट कैन किल ए पर्सन। नेक्स्ट, सबसे ग्लोबल प्रॉब्लम जो है आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फ्यूल, and that problem is our global warming. The combustion of most fuel increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere, and that leads to increase in the average temperature of the earth. It causes greenhouse effect. Okay, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होने की वजह से ये एक ब्लैंकेट बना देता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो हीट रे रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस से वापस जाता है उसको जाने नहीं देता, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। हमारा दूसरा इफेक्ट है, डिलीटेरियस इफेक्ट इज एसिड रेन। Due to burning of coal and diesel, chemicals like sulfur dioxide and nitrogen dioxides are released into the air. The pollutants reacts with the water vapor present in the air and forms a sulfuric and nitric acid. And when it rains, these acids are also present. Such kind of rain is called acid rain. It is very harmful for crops, buildings and soils. So how to prevent the acid rain? The use of diesel and petrol as a fuel in automobiles is being replaced by CNG, because CNG produces the harmful product in very small amount. Okay, and that's why CNG is a cleaner fuel. आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अगर नहीं देखा है तो अगर कोई ताजमहल विजिट किया है तो आगरा में ताजमहल का कलर किस तरह का हो गया, अभी येलोइश कलर हो गया। उसका जो ओरिजिनल कलर था मार्बल का, उसका ओरिजिनल कलर अभी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज है वहां ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज है, और उस ऑयल रिफाइनरीज से आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं वो आपका वाटर वेपर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, एंड एसिड रेन के वजह से आपका डीकोलराइजेशन हो जाता है, और जितना जो मॉन्यूमेंट है आपका ताजमहल, वो धीरे धीरे अभी उसका कलर चेंज हो रहा है। तो अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere, and that lead to increase in the average temperature of the earth. So here you can see what are the effects of how can you know that the global warming is taking place. See the air temperature near the surface के पास हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, ओशन का हीट कंटेंट बढ़ रहा है, आपका ग्लासियर मेल्ट हो रहे हैं, स्नो कवर भी मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर लैंड में बढ़ रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशन है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सो we have to be very very careful while using the fuel. यहाँ हम एसिड रेन भी देखेंगे। So as I said that कि एसिड रेन किस तरह होता है, क्यों होता है, और आपका रेन में एसिड क्यों आता है, और ये किस तरह हार्मफुल है, अभी इस डायग्राम से हम देखेंगे। आप देखो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, ये कुछ इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्रीज से आपका
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर जाकर क्लाउड जब बनाते हैं, क्लाउड में आपका वाटर वेपर के साथ ये मिक्स होके क्या बनाते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड रेन के साथ आते हैं। अभी ये रेन का वाटर जो है आइदर लैंड में गिरता है या फिर वाटर बॉडी में गिरता है। जब वाटर बॉडी में गिरता है तो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ये खतरनाक होता है। और अगर लैंड में गिरता है तो प्लांट्स के लिए ये खतरनाक होता है, सॉइल का क्वालिटी भी खराब हो जाता है, क्रॉप्स भी खराब हो जाता है, जैसे मैंने बोला मोनूमेंट्स भी खराब हो जाते हैं। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग the fuels in uncontrolled way. So how to prevent the acid rain? I have already told you. So here just I am showing the diagram. In place of diesel and petrol, we can use CNG and LPG. So these are the LPG auto. Okay, these color signifies shows that these are LPG auto, and the CNG vehicles, here you can see the natural gas is written. So these kind of fuel can be used instead of petrol and diesel. Okay, so with this our 6th chapter is over. Thank you.